السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 26 لاسٹ ایپیسوڈ۔ آخر کار رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا، اور یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب وہ اپنا گھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی ایسے گھر جا رہی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ بالکل بھی نہیں جانتی، جو اس کے لیے بالکل انجان ہوتا ہے۔ بلا شبہ رویش اور آبرو کے لیے سب لوگ انجان تھے۔ وہ پہلے سے ان لوگوں کے بارے میں جانتی تھی جو ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنے کا تصور ہی ان دونوں کو ہلکان کر رہا تھا۔ دماغ میں یہ سوچ آتے ہی ان دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ رائد نے رویش کو اسٹیج سے اٹھایا تھا اور قرآن کے سائے میں ارحم کے ہمراہ کار میں لا کر بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت ساری دعائیں دیں اور ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کیا۔ رائد کے ماما بابا نے بھی ماں باپ ہونے کے سارے فرائض ادا کیے تھے۔ رائد کے ماما بابا نے اپنی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ رویش کے نام کر دیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے رویش کو صدقے دل سے اپنی بیٹی مانا تھا۔ رویش ارحم کے ہمراہ اپنی زندگی کے نئے سفر پر چل دی۔ رویش کی رخصتی کے بعد آبرو کی رخصتی ہوئی تھی۔ آبرو کو بھی اس کے بھائی نے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ دونوں جوڑے اپنی زندگی کے نئے سفر پر جا چکے تھے۔ رات کے 9 بجے سب لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تھے۔ دلہنوں کو ان کے کمروں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کیا مسئلہ اشال، پیچھے ہٹو۔ رائد نے اسے پیچھے ہٹاتے سائڈ سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن اشال پھر سے اس کا راستہ روک گئی۔ رائد ماموں، آپ ایسے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہ جاؤں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میرا جب دل کرے گا اندر جاؤں گا، جب دل کرے گا باہر آؤں گا۔ جی ماموں جی، یہ کمرہ بھی آپ کا ہی ہے اور اس میں بیٹھی بیوی بھی آپ کی ہی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اگر جا سکتے ہیں تو جا کر دکھائیں۔ عاشر کو پہلے ہی پتا تھا رائد کتنا کنجوس ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مانے گا، اسی لیے اشال کو رائد سے نیک وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے پتا تھا رائد کو اشال ہی ہینڈل کر سکتی ہے۔ کیا ہوا اشال بیٹا، آپ ایسے دروازے کے درمیان کیوں کھڑی ہیں؟ نانی دیکھیں، یہ ایک رسم ہوتی ہے۔ پھر بھی رائد ماموں پیسے نہیں دے رہے۔ مجھے پتا ہے ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی، رسموں کے نام پر صبح سے لوٹ رہی ہے یہ مجھے۔ اب میں کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ ماما آپ اسے بولیں مجھے اندر جانے دے۔ رائد اندر جانا ہی لگا تھا کہ اس کی ماما نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ رائد بیٹا، بچی کو پیسے دو پھر اندر جانا، ورنہ وہ ساری رات یہاں سے ہلنے والی نہیں ہے۔ اپنی ماما کو اشال کی سائڈ لیٹا دیکھ رائد کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ توبہ، یہ رائد ماموں آپ تو مہا کنجوس ہیں، کنجوسی کی ساری حدیں یہاں پر آ کر ختم ہے۔ رائد ماموں جلدی سے پیسے دے دے، ورنہ یہ نہ ہو آبرو مامی آپ کا انتظار کرتے کرتے ہی سو جائیں۔ اشال کی بات نے کافی کام کیا تھا۔ رائد نے جلدی سے پیسے نکال کر اشال کے ہاتھ پر رکھے۔ جاؤ اب دوسرے ماموں کے پاس، اسے جا کر لوٹو۔ رائد کہتے ساتھ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ جتنا اشال نے اسے تنگ کیا تھا، اسے ڈر تھا اشال کہیں پھر سے رسموں کے نام پر اسے لوٹنے نہ آ جائے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں آبرو پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھ کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آ کر آبرو کے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا جو دلہن کے روپ میں قیامت ڈھاتی رائد کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ اس کی لو دیتی نظروں نے آبرو کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ چھچورے انسان، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آبرو سے جب زیادہ دیر رائد کی نظروں کی تپش برداشت نہ ہوئی تو بول پڑی، اب تو میرے پاس تمہیں دن رات دیکھنے اور پیار کرنے کا پکا لائسنس ہے۔ اچھا اب زیادہ پھیلو نہیں یار، ابھی کہاں، ابھی تو پھیلنا باقی ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جلدی سے میری منہ دکھائی دو۔ وہ بھی شرمانا گھبرانا بھول کر اپنی اصل ٹون میں واپس آئی۔ کون سی منہ دکھائی؟ کہاں کی منہ دکھائی اور کیوں دوں؟ ویسے بھی 1000 دفعہ تو میں نے تمہارا یہ منہ دیکھا ہوا ہے اور مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں ایسی کوئی رسم ہوتی ہے، اور مجھ معصوم کی تو ویسے بھی پہلی اور اکلوتی شادی ہوئی ہے، اسی لیے مجھے نہیں تھا پتا۔ رائد نے بھی آج بیچاری آبرو کو تنگ کرنے کی حد کر دی۔ مجھے یہ تو پتا تھا تم کنجوس ہو، لیکن اتنے کنجوس نکلو گے مجھے آج پتا چلا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی وائف کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ تم بہت برے ہو چھچورے انسان، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اب میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھے پتا ہے ارحم بھائی نے رویش کو اتنا اچھا گفٹ دیا ہوگا۔ بس کرو میری نئی نویلی دلہن، تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھو۔ آبرو کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بند کرنا رائد نے ضروری سمجھا۔ رائد نہیں چاہتا تھا اس کی زندگی کی یہ حسین رات آبرو کی کینچی کی طرح چلتی زبان کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ منہ بنا کر بیڈ سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ رائد نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
और एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस उसके गले की जीनत बना दिया। वाह राइड, ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ इस नेकलेस की तरह मैं अभी हमेशा तुम्हारी सांसों के करीब रहूँ। वो उसके गले में मौजूद नेकलेस को अपने होंठों से छूते बोला। उसकी इस हरकत पर आबरू खुद में सिमट गई और शर्म से नज़रें झुका गई। हाँ यार, तुम शर्माती भी हो। मैं तो अपना गिफ्ट दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे भी मेरा गिफ्ट दो। आपको क्या चाहिए राइड? मुझे मेरा हक चाहिए। क्या आबरू, तुम मुझे मेरा हक दोगे? राइड, मैं तुम्हारे हक से तुम्हें कैसे महरूम रख सकती हूँ? राइट, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना? तुम्हारा प्यार कभी कम तो नहीं होगा ना आबरू? तुम्हें तुम्हारी इस बात का जवाब हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर नई सुबह देगी। वो इसे अपनी बाहों में भरे उसके माथे पर जा बजा अपनी मोहब्बत के लम्ह छोड़ने लगा। आबरू बिस्कून से आंखें मूंद गई और ख़ुद को अपने शोहर के सुपुर्द कर गई। राइड भी अपने और इसके बीच आने वाली हर दीवार को आज गिरा गया और उसकी चादर बनकर उसे अपनी मोहब्बत के रंगों में भिगोने लगा। राइड की पल पल बढ़ती हुई गुस्ताखियाँ उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। राइड, वो लाइट राइड जो उसकी गर्दन पर झुका जा बजा अपनी मोहब्बत के लम्स छोड़ रहा था, गर्दन उठाकर आबरू की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उसकी मोहब्बत के अनगिनत रंग बिखरे हुए थे। राइड के देखते वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर गई और अपनी उठल पुठल होती सांसों को नॉर्मल करने लगी। उसकी इस हरकत पर राइड को टूट कर उस पर प्यार आया। वो लाइट ऑफ करता एक दफ़ा फिर उस पर झुक चुका था। वो उसके लबों से खुद को सैराब करता उस पर खुलता जा रहा था और मोहब्बत भरी रात इनके लिए यादगार बनती जा रही थी। आज दो मोहब्बत करने वाले एक हो गए थे और खिड़की से बाहर खड़ी चांद की चांदनी उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। अरहम और अरवीश जैसे ही घर पहुंचे, गुलाब की सुर्ख पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया गया। वो अरवीश का हाथ थामे आगे बढ़ रहा था और मुस्कुराहट उनके चेहरे से हटने से आज इनकारी थी। अरवीश को दीदा अरहम के कमरे में छोड़ आई थी, जबकि अरहम बाहर लाउंज में ही बैठ गया था। थोड़ी देर बाद दीदा ने आकर अरहम को उसके कमरे में भेजा। मामू रुके हैं किधर? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले नेक तो देते जाए। सुबह से तो तुम इतना लूट चुके हो, अब फिर पैसे चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। उसने बगैर बहस किए मुंह मांगी कीमत निकाल कर आशिर को थमाई, क्योंकि वो सुबह से तैयारियों में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए बहस करना ज़रूरी ना समझा। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, फूलों की खुशबू उसके नथनों से टकराई। पूरे कमरे को ताज़ा फूलों से सजाया गया था, जो उस मंज़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था और उसके दिल में एक अलग किस्म की हलचल मचा रहा था। वो चलता हुआ अरवीश तक गया और अपनी शेरवानी उतार कर साइड पर रखी। अरहम जानता था इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब वो अरवीश की ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। उसने अपने दिल में पक्का अहद किया। उसने अपनी नज़रें उठाकर अरवीश की तरफ देखा, जो नर्वस सी बैठी हुई थी। उसने अरवीश के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया और होंठों से लगा गया। अरवीश, मैं अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं ताउम्र तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूँगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। मैं अपनी जान से भी बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अरहम के इतने प्यार पर अरवीश की आंखों से कई आंसू निकल कर बेमोल हुए थे, क्योंकि उसे अपने मामा बाबा के जाने के बाद आज पहली दफ़ा इतना प्यार मिल रहा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए। अरहम, मैं ये नहीं जानती कि मैं आपसे कितना प्यार करूँगी, लेकिन एक वादा ज़रूर करती हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ताउम्र आपसे वफ़ा निभाऊँगी, कभी आपके साथ बेवफ़ाई नहीं करूँगी। अरवीश के दिमाग में अचानक उस दिन वाली पार्लर वाली लड़की की बात आई। आपने उस दिन पार्लर वाली लड़की को मेरे बाल कटना करने का क्यों बोला था? आपने मेरे बाल कब देखे? मैं तो हमेशा दुपट्टे में रहती थी ना। जब तुम हमारे निकाह वाले दिन बेहोश हो गई थी, तब तुम्हारे बाल तुम्हारे मुंह पर बिखरे हुए थे। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद आए थे। और हमने पास पड़ा पैकेट उठाया और उसमें से गजरे निकाल कर अरवीश को पहनाए। अरवीश, तुम्हें पता है मुझे ये गजरे बहुत पसंद हैं। मैं रोज़ाना तुम्हारे लिए ऐसे गजरे लेकर आया करूँगा, पहनोगी ना तुम? अरहम के पूछने पर वह हाँ में गर्दन हिला गई। उसके हाँ करने पर अरहम के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट छा गई। आज वो अरवीश को अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात बता रहा था। अरहम ने अपनी पॉकेट से खूबसूरत सी डायमंड की रिंग निकाल ली और अरवीश की उंगली में पहनाकर उस पर अपने लब रखे। तुम्हें पता है अरवीश, आज मेरे दिल में अनगिनत ख्वाहिशात सर उठा रही हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल भी दबाने वाला नहीं हूँ, बल्कि इन लम्हात को खुल कर जीने वाला हूँ। मैं आज की रात हम दोनों के लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। बोलते साथ ही अरवीश के कान की लू को दांतों तले दबा गया। उसके मुंह से एक सिसकारी बरामद हुई। अरहम की हरकतों से अरवीश चंद ही लम्हों में सुर्ख पड़ गई। अरवीश, मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम अपनी पिछली तमाम मज़ियतों को भूल जाओ। तुम्हें पता है अरवीश, मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। वो अपने प्यार का इजहार करने के साथ साथ उसकी ज्वेलरी निकाल कर साइड टेबल पर रख चुका था। अरवीश के दिल की धड़कनें आज एक अलग हीरो में धड़क रही थी। अरहम ने जैसे ही अरवीश का भारी दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा, तो उसकी नज़र अरवीश के दीप गले पर गई, जो उसे मज़ीद उकसा
आने लगा। वो इसकी गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ता चला गया और कुछ ही देर में गर्दन से कमर तक का सफ़र वो तय कर चुका था। उसके होंठों का लम्स पाते और रवीश किसी और रुझान में पहुंच चुके थे। उसने मजबूती से बेड की चादर को अपने हाथों में जकड़ रखा था। अरहम जैसे ही उसकी शर्ट की जिप खोलने लगा, वो तरफ ही उठी और अपने सीने पर हाथ रख गई। उसने चेहरा मोड़कर अरहम की तरफ देखा, जिसकी आंखें जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। अरहम की नज़रों का ताब ना लाते हुए वो जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदल गई। वो उसे बाजुओं से थाम कर बेड पर लेटा गया और खुद उस पर झुकता चला गया। वो उसके कंधों से शर्ट सिरका कर वहाँ पर जा बजा अपना लम्स छोड़ चुका था। आज रवीश भी अरहम के हर अमल में उसका साथ दे रही थी। आज दोनों खुद एक दूसरे को सौंप रहे थे। रवीश भी आज अपना हर हक वसूल करती अरहम में गुम हो चुकी थी। आज वो दोनों एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लुटा रहे थे। आज वो दोनों एक दूसरे को खुद के रंग में रंग रहे थे। आज दो पाकीज़ा रूहें एक हो गई थी। एक दूसरे को पाने के लिए उन दोनों ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था। आज कहीं दूर चांद की चांदनी भी उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। आज दो मोहब्बत करने वाले जोड़ों की मोहब्बत अपने अंजाम को पहुँच चुकी थी। उन दोनों को एक दूसरे के हमसफ़र के रूप में उनके सब्र का फल मिल गया था। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। आज वलीमे का फंक्शन था, जो कि एक बड़े मैरिज हॉल में ही होना था। आज भी वो दोनों जोड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो दोनों जोड़े अपनी अपनी ज़िंदगियों को अपनी बाहों में समेटे हुए थे। आज वो सब अपने मनचाहे हमसफ़र के संग थे। क्या लगता है इस रवीश को मुझसे मेरा हक छीन कर वो खुश रहेगी और मैं उसे खुश रहने भी दूंगी? तो ये उसकी गलत फहमी होगी। अगर मैंने भी उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी को मातम में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी इरहा नहीं। अपने मोबाइल पर रोहेल की कॉल आते देख वो तब ही उठी। रोहेल ही वो इंसान था जिसकी वजह से इरहा ने अरहम को छोड़ा था। और अब जब से इरहा को पता चला था अरहम रवीश का शोहर है, तो इसके हसद की कोई इंतहा ही नहीं रही। वो बस अरहम को किसी भी तरह पाना चाहती थी, इसलिए रोहेल को भी काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रही थी। रोहेल की कॉल पिक करते हुए इस पर चढ़ दौड़ी। क्या मुसीबत है, तुम्हें क्यों तंग किए जा रहे हो? जब मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब हुआ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। या तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बस मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, मैं अरहम के पास वापस जाना चाहती हूँ, समझे? तुम अब दफ़ा आ जाओ मेरी ज़िंदगी से। इरा की बात सुनकर रोहेल को 440 वाट का झटका ही तो लगा था। वाट, तुम इस अरहम की बात कर रही हो जिसे छोड़कर तुम मेरे पास आई थी? तुम इसी अरहम की बात कर रही हो जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था और तुमने उसको ही नहीं उसकी मोहब्बत को भी जलील किया था? तुम्हें क्या लगता है तुम अरहम के पास वापस जाओगी और वो तुम्हें अपना लेगा? नो नेवर। वो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है। वो कभी भी तुम्हारे लिए उसे नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, उस अरवीश में ऐसा है ही क्या? खूबसूरत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं उसमें। वो बेशक शक्ल से खूबसूरत ना, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत है। तुम जैसी काले दिल की नहीं है वो अपने खूबसूरत सीरत की वजह से अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। और मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, तुम मैं अरहम नहीं हूँ जिसे तुम इस्तेमाल करके छोड़ दोगे और वो चुपचाप बैठ जाएगा। रोहेल नाम है मेरा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती तुमसे। और दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे अब अरहम चाहिए अपनी ज़िंदगी में। रोहेल पर अपनी भड़ास निकालने के बाद वो खटाक से कॉल डिस्कनेक्ट कर गई और मोबाइल ज़ोर से दीवार पर पटका। अरवीश अरवीश अरवीश, जिसे देखो अरवीश अरवीश करता फिर रहा। इस अरवीश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रोहेल के मुँह से अरवीश की तारीफ सुनकर इरहा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपनी खूबसूरती पर। जो तुम्हारी ये खूबसूरती ही नहीं रहेगी तो क्या करोगी तुम? हाँ हाँ, उसे ख्याल में मुखातिब करते ही रोहेल ने ज़ोरदार कहका लगाया और मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाई। हाँ, घर के बाहर रहकर ध्यान रखो। जैसे ही वो घर से बाहर निकले मुझे इन्फॉर्म कर देना। मुकाबिल ने भी ओके का साइन दिया था। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे सरहम के पास जाती हो, तुम्हें भी पता चल जाएगा मुझे चीट करने वालों का क्या अंजाम होता ही रहा। बेबी अगले दिन रहा तैयार होकर घर से बाहर निकली थी। इसका इरादा अरहम के पास जाने का था। वो अरहम को पाने में ज़्यादा देर नहीं कर सकती थी। अभी वो बीच रास्ते ही पहुंची थी कि एक तेज़ रफ्तार बाइक ने उसके पास से गुजरते हुए उसके चेहरे पर एसिड फेंका था, जिससे इरहा का चेहरा मुकम्मल तौर पर झुलस चुका था। वो तड़प रही थी, चेहरे पर जलन उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। चेहरे के साथ साथ उसकी गर्दन भी झुलस चुकी थी। इरहा जैसे ही घर से बाहर निकली थी, वो आदमी जिसे रोहेल ने इरहा के घर के बाहर उस पर नज़र रखने के लिए खड़ा किया हुआ था, उसने इरहा के घर से बाहर निकलते ही रोहेल को इन्फॉर्म कर दिया था। रोहेल को पक्का यकीन था जिस कदर वो हमको पाने के लिए बेताब हो रही है वो उससे ही मिलने जा रही है, इसलिए अपना चेहरा अच्छी तरह स्कार्फ से कवर किए वो इरहा के रिक्शे का पीछा करने लगा। जैसे ही वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे, रोहेल ने मौका देखते इरहा के ऊपर एसिड फेंक दिया और तेज़ी से बाइक आगे को बढ़ा ले गया और लोगों की नज़रों में भी आने से बच गया।
रोती तड़पती इरहा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। बेटी के साथ हुए वाक़ये का सुनकर हाइफा बेगम का सदमे से बुरा हाल था। जब अरवीश को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल आई थी, लेकिन वो सारा इल्ज़ाम अरवीश पर लगा गई थी कि सब किया ढरा अरवीश का ही। आज इरहा का गरूर खाक में मिल गया था। वो हुसन जिस पर उसे बहुत गरूर था, आज उसके पास उसका वो हुसन ही नहीं था। बेशक अल्लाह गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। इरहा का अरवीश के साथ रवैया देखते अरहम ने उसे दोबारा इरहा से मिलने से मना कर दिया था। इरहा और उसकी माँ को उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी और उन चारों को उनकी मोहब्बत का फल भी मिल चुका था। वो चारों अपनी ज़िंदगियों में अपने पाकीज़ा हमसफ़र को पाकर बहुत खुश थे। अरवीश को उसकी मोहब्बत का फल अरहम की सूरत में मिला था। ख़त्म शुद्ध पाकीज़ा इश्क का ये सफ़र आज अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आप